Hi students, welcome all of you in our next class of chapter 8, 12th class. The chapter name is electromagnetic waves. First of all, happy Teachers Day to all of you. Wishes for good health and magnetic blessings for your bright future. Let's start. Electromagnetic waves, chapter 8 में we have just introduced what are electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने दिया तो कैसे होती हैं, मैक्सवेल ने कैसे कॉन्सेप्ट दिया है, देन मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट करंट. Concept of Maxwell for electromagnetic waves, then displacement current and Maxwell's four equations we have done in the last class. Let us continue that one. Today we will discuss about properties of electromagnetic waves. Properties of electromagnetic waves, then electromagnetic spectrum and uses of electromagnetic waves हमें आज पढ़ना है. That is the remaining part of chapter 8. Can I discuss? Let's discuss. First property. These are non-mechanical waves. These are non-mechanical waves. ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था. Waves and types of waves में mechanical, non-mechanical. Got it? All electromagnetic waves are non-mechanical waves. 11th class में last chapter waves में पढ़ा था. What does it mean? Non-mechanical waves का मतलब है that is these do not require medium, or we can say material medium to travel or to propagate. That means they can travel in medium as well as in vacuum. Medium and vacuum दोनों में travel कर सकती हैं. That's why these are non-mechanical waves. Second one is velocity of electromagnetic waves. Velocity of electromagnetic waves is always equal to velocity of light. Velocity of light. You know well what is velocity of light? Represented by c. कितना होता है? That is 299,792,458 मीटर पर सेकेंड. अब हम सोचेंगे ये तो हमने सुना ही नहीं कभी. एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज दिस वन, बट ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशंस करने के लिए, आसान करने के लिए. इस स्टेज में हमें आसान करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम यूज करते हैं. अप्रॉक्सीमेटली ये हम यूज करते हैं हर जगह, नो डाउट हमें यही चाहिए हर जगह. बट एग्जैक्ट इज दिस वन, जस्ट ऐसे ही मैंने लिख दिया, पता होना चाहिए, बट रट्टे मारने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, चेक कर सकते हो. बट हमें हर जगह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज करना है. गॉट इट? इन वैक्यूम और एयर. दिस इज द वेलोसिटी इन vacuum or air. Got it? Formula for velocity is given by 1/√μ0 in vacuum. हमने सुना होगा ये फॉर्मूला, μ0 in vacuum. μ0 absolute permeability in vacuum, absolute permittivity of vacuum. इनकी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, सॉल्व करेंगे तो वैक्यूम में यही आएगा. दैट इज, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/√μr μ0 कहाँ पे होगा? इन अ मीडियम.
मीडियम, किसी भी मीडियम में म्यू आर एप्सिलॉन आर मीडियम के ऐड हो जाएंगे. होप यू अंडरस्टैंड. इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट in a medium. One more formula for velocity is equals to E by B or E naught by B naught. E by B as well as E naught by B naught. Now the point is, what is E, B, E naught, B naught? समझते हैं जरा. Where E is the electric field intensity. What is E? Electric field intensity at any time t, at any position x. At any time t, at any position x. कैसे वो भी रिप्रेजेंट करेंगे. What is B? Magnetic field intensity. Magnetic field intensity at any time t, at any position x. What about E naught and B naught? E naught is the maximum electric field. We can say, क्या बोल सकते हैं? maximum electric field को क्या बोलते हैं? electric field amplitude भी बोलते हैं. B naught is maximum magnetic field, also written as amplitude of magnetic field और magnetic field amplitude भी कह सकते हैं. That is, अब इनकी इक्वेशन क्या होंगी, इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. इक्वेशन ऑफ, और वी कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. हमने ध्यान से सुना होगा ईएम वेव्स का कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया था. व्हाट आर ईएम वेव्स? सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, सुपरपोजिशन ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट? यानी कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी मींस इलेक्ट्रिक एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे होंगे. उनका सुपरपोजिशन जो होगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो कैसे ट्रेवल करेंगे, उनकी इक्वेशन, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at any instant is equals to E naught sin omega t minus kx. वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेव की तरह ट्रैवल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वेव की तरह ही ट्रैवल करेगा. सो इक्वेशन किसकी होगी? वेव की इक्वेशन होगी. B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्सिस भी, ये हमें ध्यान आ रहा होगा 11th में लास्ट चैप्टर में, वेव्स चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ अ वेव, वेव की इक्वेशन यही पढ़ा था हमने. क्या थी? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड. इसी तरह से वेव की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन फॉर वेव, वेव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान हो तो हमें y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx. गॉट इट? डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, that is amplitude यानी maximum displacement E naught B naught. Same. Omega t minus kx is known as phase. हमने phase नाम दिया था इसे. इसमें ओमेगा क्या है, k क्या है, हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. मैं मेंशन कर देता हूँ. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बहुत बार फॉर्मूले पढ़ चुके हैं. थीटा बाय स्मॉल t, 2 पाई बाय कैपिटल T और 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी. What about K? K क्या होता है? ये K क्या है? That is equals to 2 pi by lambda, also equal to omega by b. Additional term है, 11th में हमने पढ़ा था, याद होना चाहिए. बोलेंगे क्या? Angular frequency. This is known as angular wave number. और प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं. प्रोपेगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर हमें ध्यान रखना है. यूज हो सकता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत यूज हो सकता है. एंगुलर वेव नंबर ऑल्सो नोन एज प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कह देते हैं. दिस के सब में यही आएगा. यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी वेव की तरह ही ट्रैवल करेंगे. गॉट इट? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स में
फर्स्ट सेकंड इज वेलोसिटी, वेलोसिटी में लेट मी क्लियर इन पे बेस्ड, इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ रहा है। जेईई मेंस में क्वेश्चन अभी जनवरी 2020 में भी था और लास्ट ईयर 2019 में भी था। सो डू प्रैक्टिस वेल। और अभी जो आज मैं बात करूं तो डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों जो पेपर हुआ है जेईई मेंस का, जो लेट होने के बाद सितंबर में पेपर हो रहे हैं, यू नो दिस इज 5 सितंबर टीचर्स डे, जो 3 सितंबर को पेपर हो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है आई विल डिस्कस लेटर। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जो जेईई मेंस में आया। नीट में भी यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड। बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है देखें जरा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ गई, बोर्ड एग्जाम में कैसे आया क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ वेव ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस। व्हेन अ वेव ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस, वेव इधर जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में कैसे प्रोपेगेट कर रहे होंगे वो हमें ड्रॉ करना है। करें डिस्कस। इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस पे प्रोपेगेट करेगा। z एक्सिस बाहर की तरफ होता है बट शो ऐसे करेंगे z एक्सिस के अलोंग इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इट Then wave travel along x-axis, then electric and magnetic field travels along y and z axis respectively. इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इन दोनों की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगी। ओसिलेट यहां करेंगे बट ट्रैवल इसी डायरेक्शन में करेंगे। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। डायरेक्शन कैसे देखेंगे? वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ध्यान रखेंगे दैट इज इक्वल्स टू E क्रॉस B से आएगी। किससे आएगी? इससे हम डायरेक्शन ऑफ वेव निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेव हम बता सकते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में जाएगी, E क्रॉस B। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे घुमाएंगे, इधर वेव ट्रेवल करेगी। यदि हम इनके डायरेक्शन चेंज कर देंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला वैलिड हर जगह रहना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। यहां से हम वेव की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। व्हाट इट? लेट अस ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली दोनों ही साइन फंक्शन है बट दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड साइन फंक्शन है, ध्यान रखेंगे साइन फंक्शन है बट साइन फंक्शन के साथ साथ वाई एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है। कौन से एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है? वाई एक्सिस पे। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां ऑसिलेट कर रहा है? जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस तो ऐसे होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए, मोशन उसी डायरेक्शन में बट वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेशन ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड का जेड एक्सिस मतलब ऐसे होगा। होप यू कैन इमेजिन लाइक दिस। बट शो कैसे करें जी? ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे शो करेंगे लाइक दिस। ध्यान से डायग्राम देखेंगे, शो ऐसे करना है हमें लाइक दिस, लाइक दिस। ये यहां से आ जाएगा, यहां से जाएगा ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करते हुए इधर ट्रेवल करेगा। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें? मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे तो इस तरह से इंक्लाइंड शो करेंगे ताकि दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सकें। यहां पे एरो इधर चले जाएंगे लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा। होप यू कैन अंडरस्टैंड द डायग्राम। दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। वन मोर। कुछ बच्चों के आर्ट काफी अच्छे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आर्ट काफी अच्छा है, अच्छी आर्ट बनाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा सा डायग्राम इसका बना के जरूर भेजेंगे ग्रुप में। एक दो बच्चे ने भेजा भी था, मैं लास्ट क्लास में जब पढ़ा रहा था काफी अच्छा डायग्राम था। एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम गिवन है, 3D है तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करता हुआ इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है 3D में ऐसे। दैट्स उसको हम शो ऐसे कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। होप यू अंडरस्टैंड। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पैटर्न हमें ड्रॉ करना था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस।
We are talking about properties. Let's go to the 1, 2 and then next third property. Next property पे चलते हैं. Properties of EM waves में next property की बात करते हैं. Next is what is the charge of electromagnetic wave? Electromagnetic waves are means these are chargeless as well as massless. These are chargeless as well as massless, means these do not have charge and do not have mass. What is the energy of electromagnetic wave? Energy of electromagnetic wave is equals to h nu और hc by lambda. हम सब ने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है. रेडिएशन जिसे हम बोल देते हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी वेव ही है. व्हाट इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट और h बाय लैम्डा. बट यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, E से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एनर्जी को भी. सो इट इज बेटर कि एनर्जी को हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट कर दें तो बेटर रहेगा. एनर्जी को कैपिटल U से रिप्रेजेंट करना इज बेटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से ही रिप्रेजेंट करना ठीक रहेगा. करेंगे एनर्जी को U से, एंड मोमेंटम में एनर्जी बाय c h बाय लैम्डा. फॉर्मूले हम सब ने पढ़े हैं. दैट मींस electromagnetic waves are chargeless as well as massless, but these carry energy and momentum. इनके पास एनर्जी है, मोमेंटम भी है. अब एनर्जी या मोमेंटम भी है तो जहां भी हिट करेंगे वहां पे फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे. कितना? फॉर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी और प्रेशर की बात करेंगे. उससे पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज equally distributed. Energy of electromagnetic wave is equally distributed between electric field intensity and magnetic field intensity. दोनों में equally distributed होते हैं, दोनों एनर्जी को कैरी करते हैं. कितनी एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी यू नो वेल हाफ q square by c, and in the form of magnetic field it is half Li square. हमने different chapters में पढ़ा है. So what is the energy? Energy in the form of electric field is half. कितना था? Half q naught square by c, and magnetic field की फॉर्म में half कितना हो जाएगा? Half q naught square by c, and magnetic field की फॉर्म में half Li naught square. ये हमने पढ़ा था. जनरली यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में भी यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में भी यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कि इंटेंसिटी क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि इंटेंसिटी मींस व्हाट. इंटेंसिटी होती क्या? कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा. इंटेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. ध्यान रखेंगे इंटेंसिटी हर जगह यही रहेगा. एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एंड एनर्जी पर यूनिट टाइम यू नो वेल पावर. एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर पर यूनिट एरिया. एनर्जी पर सेकंड इज पावर अपॉन एरिया. कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. सो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया और एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ epsilon naught E square into C. Half epsilon naught E square into C. What is half epsilon naught E square? Energy density in the form of electric field. Energy density. It is also equal to half B square by mu naught into C. Velocity of light. E naught square and B naught square. What is half B naught square by mu naught? This is energy density in the form of magnetic field. हमें ध्यान होगा into velocity of light करना पड़ेगा. कैसे आया वो थोड़ा सा हम एनालाइज कर सकते हैं.
इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, दैट इज इंटेंसिटी। इसी में अक्सर पॉइंट आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है जो हमें देखना है, समझना है। पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज नोन एज रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, फिर वही पॉइंट आ गया, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय P, पावर इज आल्सो P, प्रेशर इज आल्सो P। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कहाँ P किस फॉर्मूले में किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल्स टू, सॉल्व करें तो क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इनटू एरिया। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपॉन एरिया। अब यहाँ पे डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम कैसे लें, मोमेंटम का फॉर्मूला इज एनर्जी बाय वेलोसिटी, एनर्जी बाय वेलोसिटी। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो एनर्जी से रिलेट करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मासलेस, चार्जलेस। सो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी नहीं होगा, मोमेंटम इज एनर्जी बाय वेलोसिटी। सो इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे कैसे, चेंज इन मोमेंटम को एनर्जी से रिलेट करेंगे। प्लीज, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज रेडिएशन प्रेशर। बट इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। होप यू आर गेटिंग द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ। एट्थ पॉइंट को थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे, एट्थ पॉइंट को हम और थोड़ा सा समझेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो हमें समझना है। देखें जरा, एग्जाम्पल में लेके चलूंगा। इफ अ वेव ऑफ एनर्जी, इफ अ वेव ऑफ इंटेंसिटी ले लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया मैं उसकी बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ अ वेव ऑफ इंटेंसिटी I is reflected by a surface, इसका मतलब क्या है कि कोई सरफेस है, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट की, इंटेंसिटी जाए एंड रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट कर दिया उसे, रिफ्लेक्ट कर दिया मतलब वापस आ गई है। देन इस वेव ने इस सरफेस पे कितना फोर्स लगाया, कितना प्रेशर लगाया। देन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर कह सकते हैं इसे हम, इज इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां से देखें, मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूं, बट आई एम एक्सप्लेनिंग दैट वन कि कैसे आया आंसर। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल एनर्जी बाय वेलोसिटी, वही मोमेंटम इज एनर्जी बाय वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम एनर्जी बाय वेलोसिटी। बट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मोमेंटम है u by c, तो इसका मोमेंटम होगा माइनस u by c। फाइनल मोमेंटम इज माइनस u by c माइनस इनिशियल मोमेंटम इज u by c, डायरेक्शन ऑपोजिट होने से माइनस आया है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सो माइनस 2u by c डेल्टा t into area. What is this? Energy per unit time per unit area. Energy per unit time per unit area is intensity. So this can be written as minus 2I by c. 2, this is intensity by c. But ध्यान देंगे, इतना प्रेशर सरफेस ने रेडिएशन पे लगाया जिससे रेडिएशन वापस मुड़ गई। रेडिएशन को वापस किसने भेज दिया, सरफेस पे हिट किया और सरफेस ने उसे आगे नहीं जाने दिया, मींस रिफ्लेक्टेड बैक। सो इतना प्रेशर रेडिएशन पे इधर लग रहा है, माइनस मतलब, तो रेडिएशन ने सरफेस पे कितना प्रेशर लगाया, सेम बट प्लस 2u 2I by c। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द वेव, देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेव ऑन द सरफेस प्लस 2I by c हो जाएगा, becomes plus 2I by c। Got it? ये हमें ध्यान रखना है।
परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग की जगह एब्जॉर्बिंग सरफेस होता तो एब्जॉर्ब कर लिया मींस वापस नहीं आ रही, फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ये जीरो बनेगा, जो 2 हट जाएगा, ओनली माइनस आई बाई सी आ जाएगा। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लिखा नहीं है, यू कैन नोट डाउन इन योर नोट्स। व्हाट इट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी आ गया हमारे पास, देन रेडिएशन प्रेशर भी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक्चुअली यहां से क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव से क्वेश्चन आ रहा है बार बार, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, अदर एग्जाम्स में भी अक्सर क्वेश्चन यहां से आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मींस to arrange all the electromagnetic waves in the increasing or decreasing order of frequency or wavelength। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करना। कैसे? फर्स्ट वन आर, लेट मी अरेंज, फर्स्ट वन वी विल टेक गामा रेज, सेकंड वन वी विल टेक गामा एक्स रेज। What about third one? Third one are UV rays, ultraviolet rays. Fourth one कौन बताएगा? Fourth one are, और ये भी बताना है कि मैं किस ऑर्डर में लिख रहा हूँ, जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ इस ऑर्डर में वेवलेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ये हमें बताना है प्लीज। फोर्थ वन आर विजिबल लाइट, जो व्हाइट लाइट जिसे हम बोलते हैं, विजिबल वेव्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन आर इंफ्रारेड रेज, सिक्स्थ वन आर माइक्रोवेव्स, एंड द लास्ट वन आर रेडियो वेव्स। सभी के बारे में सीखेंगे। एंड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहां से बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहां से आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे प्लीज। व्हाट आर गामा रेज हमें वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा इस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। गॉट इट? वेवलेंथ रेंज की बात करें तो इनकी वेवलेंथ क्या होगी, गामा रेज की वेवलेंथ क्या होगी, दैट शुड बी लेस देन 10 पावर -3 नैनोमीटर। व्हाट अबाउट एक्स रेज का वेवलेंथ 10 पावर -3 नैनोमीटर से, देखो वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। फॉर एक्स रेज वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 10 पावर -3 नैनोमीटर एंड लेस देन 1 नैनोमीटर। ये मैं एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूं। फॉर अल्ट्रावायलेट रेज वेवलेंथ इज 1 नैनोमीटर से ग्रेटर एंड 400 नैनोमीटर से कम, 1 to 400 नैनोमीटर। व्हाट अबाउट विजिबल लाइट? 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर। व्हाट अबाउट इंफ्रारेड रेज? That is 700 नैनोमीटर to कितना आएगा, 1 मिलीमीटर। Then microwaves 1 millimeter to 0.1 meter, and radio waves में wavelength becomes greater than 0.1 meter। क्वेश्चन कैसे आता है? Wavelength of an electromagnetic waves is 20 nanometer. Name the electromagnetic wave and write its uses। अब हमें 20 नैनोमीटर यानी 1 और 400 के बीच में होगा, ये हमें याद नहीं होगा तो ये नहीं पता कौन सी वेव है, फिर उसके यूज कैसे लिखेंगे। सो हमें ये वेवलेंथ रेंज याद करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी का डाटा मैंने शेयर किया है। अब फ्रीक्वेंसी दे दे तो यू नो व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू c by nu, वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दें, देखो दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, वेवलेंथ याद होगी तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, पुट कर दो, वेवलेंथ निकाल के फिर सॉल्व कर दो। होप यू अंडरस्टैंड properties of EM waves and order of electromagnetic waves with wavelength and frequency। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। Thank you all, take care, thank you।